नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मस्ती की पाठशाला 501 और आप देख रहे हैं फेमस शो GSG के 365। आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हियर इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी important न्यूज़ दैट इज़ China's new military bases in Cambodia at Dara Sakor is directly threat to India as well as the USA. Is the China preparing for a big war against India and USA? For what purpose China wants such a huge number of bases throughout the world, and they are preparing multiple layers of securities and enhancing its military presence throughout the world, okay, in and around India, and especially, okay, why China is doing this and what exactly this Cambodian Chinese base Dara Sakor, okay, is it really the threat? क्या ये रियली थ्रेट है या फिर इसी तरीके से जानते हैं डीपली। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका होस्ट PD रामकृष्ण। हियर इट इज़ अ न्यूज़ डायरेक्टली फ्रॉम प्लेज टाइम्स। ओके, प्लेज टाइम्स से डायरेक्ट न्यूज़ है। चाइनाज फोर्टिफाइंग द कंबोडिया अगेंस्ट इंडिया एंड US, साइंस टू बिल्ड अ मिलिट्री बेस। 25 अगस्त की न्यूज़ फीड है। इट इज़ नॉट अ इंडियन पेपर, लेकिन ये एशियन पेपर है विच इज़ शोइंग दैट चाइना इज़ फोर्टिफाइंग कंबोडियन against India and US. It's a dual enemy targeting sequence. Okay. Here it is directly map है यहाँ पे। ये रहा दारा सिखो resort. Actually this resort is taken by the Chinese company on a lease for 19 years. ओके, दारा सिखो रिजॉर्ट में। एंड एक्चुअली दिस इज़ अ चाइनीज़ डिज़ाइन। चाइना का एक डिज़ाइन रहा है कि वो हेविली इन्वेस्ट करता है, वो वहाँ पर उस गवर्नमेंट को मजबूर कर देता है और फिर गवर्नमेंट उसको लीज पे दे देती है। जिस तरीके से श्रीलंका में चाइना ने किया है हब्बनटोटा पोर्ट, श्रीलंका के साउथ में। ओके, हब्बनटोटा पोर्ट इज़ ऑलरेडी अंडर चाइना। ओके, सिमिलर वे चाइना इज़ गोइंग बिल्डिंग bases in Pakistan. On the same line, Dara Sakor base is going to be a game changer in case we have a conflict, that is India have a conflict with China, or a USA going to have a conflict with China. Okay, China is already claiming this whole territory, okay, South China territory. Okay. Most of the Southeast Asian nations, especially Philippines, Malaysia, Indonesia, Thailand, everybody is just creating and raising the banner of revolt against China. Okay, Chinese aggression at sea. But China taken a Cambodia in their confidence, and China is now going to build up Dara Sakor resort that is known as a dual implication and application investment. Okay, here you have to know, आपको जानने के लिए और भी है। चाइना कैन गेट अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन एशिया विद द हेल्प ऑफ एयर एंड सी पोर्ट्स इन दारा सकौर। यहाँ पर एयरपोर्ट भी बना रहे और सी पोर्ट भी बना रहे। सी पोर्ट ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, एयरपोर्ट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड एंड इट इज़ इन अ लास्ट फेज। ओके, दारा सकौर टेकन ऑन 99 years of lease. That is where the main eyebrows raise of this question. Why China wants so much land outside the China, although China is having so much of land mass, फिर भी चाइना को बाहर क्यों चाहिए? Is it China is going to be threat for the whole world? पूरे दुनिया के लिए ये बहुत खतरा बनने वाला है क्या? आइए जानते हैं। Chinese based Tianjin Union Development Group, it is a private company. It is not a private company. चाइना की सारी प्राइवेट कंपनी बैक एंड में उनके मिलिट्री लीडर से हैंड इन ग्लो होती है, दोनों मिली रहती है। और चाइनीज़ मिलिट्री बेस क्रिएट करना और चाइना की प्राइवेट कंपनी वहाँ पर इन्वेस्ट करना, दोनों एक ही सिक्के के दो रूप है, दो पहलू है, दिस इज़ अ टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ओके, has built up an airstrip at a national park at Dara Sakor and port facility at a nearby resort. It is a fear that the project is designed to house Chinese fighter jets and naval ship. चाइना के फाइटर जेट और नेवल शिप को स्पेशली बर्थिंग फैसिलिटी एंड टेक ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया हुआ। Cambodia going to act as a forward base for Chinese Air Force and Chinese Navy. What it is देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये रहा दारा सकौर रिजॉर्ट यहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है। ओके, दारा सकौर एयर स्ट्रिप, यहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाई है इन्होंने। ओके, आल्सो दे टेकन ओवर दिस
facility. Okay, and here you find a Kampot deep water port of by China. यहाँ पर भी एक deep water port Chinese बनाया है. Also Riam naval base, now it going to be a Chinese Cambodian naval base. चाइना के सारे मिलिट्रीज और नेवल शिप गोइंग टू बी having a port of call, regular port of call, and regular presence of Chinese warships will be there. Okay, so now these are the locations, and these are the vital locations within South China Sea, and China just wanted to shift the power balance. China को power balance shift करना है. जो choke point है मलक्का स्ट्रेट का, और दैट इज़ अ वेरी वाइटल पॉइंट फॉर द एनर्जी सप्लाई लाइन टू चाइना, उसको चाइना को रिस्टोर करना है और उसको अपने कब्जे में लेना है. ओके, इन केस ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद यूएसए और इंडिया, तो वो चोक पॉइंट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ना आने के लिए ये सारी जद्दोजहद है. तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि अगर चाइना इंडिया के साथ क्रिमिशस में जाता है, वॉर पे जाता है, तभी ये चीज़ संभव है. तो इज़ इट चाइना प्लानिंग फॉर दैट पर्पस? क्या चाइना उसी के लिए तैयार हो रहा है और डिलिब्रेटली ये सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहा है ताकि भविष्य में वो कॉन्फ्लिक्ट कर सके? देखिए, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन शुरुआत में यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल क्लियर किया गया, फिर एयर स्ट्रिप का ढांचा बनाया गया और धीरे धीरे इस तरीके से एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट बनाया गया. नाउ दिस गोइंग टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट इन कंबोडिया. कंबोडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनवे होने वाला है. और इतना लंबा रनवे होने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज on this runway the fighter jet and especially long range bombers can fly from this jet. Okay, जो heavy weight और heavy load लेके जा सकते हैं, ऐसे ही फाइटर प्लेन को यहाँ पर डिप्लॉय करने का चीन का मंशा होगी, और उसी की वजह से इतने मिड जंगल में और नेशनल पार्क के अंदर इतना बड़ा रनवे बनाया है. ओके, दिस इज़ अ नेवल फैसिलिटी. ओके, ये मेकशिफ्ट फैसिलिटी है जो कि अभी डीप सी पोर्ट में कन्वर्ट होके यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं. ठीक है, नाउ यू कैन फाइंड हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ जो है पेट्रोलिंग बोट्स आर ऑलरेडी पार्क. ये सैटेलाइट इमेज है, एंड दीज आर द चाइनीज़ ट्रूप्स. ये चाइनीज़ ट्रूप्स है. ओके, अलॉन्ग विथ सम कम्बोडियन ट्रूप्स. और ये है चाइनीज़ वॉरशिप विच इज़ टेकिंग अ पोर्ट ऑफ कॉल एट कंबोडिया. तो चीन का प्रेजेंस यहाँ पर रहना, चीन की मिलिट्री प्रेजेंस, ये पूरे इस रीजन के लिए काफ़ी खतरा है. ओके, लास्ट ईयर द ब्लूमबर्ग एक न्यूज़ एजेंसी, उसने रिपोर्ट किया था तियानजान यूनियन हैड लीज दारा सकौर फॉर 99 ईयर्स. इट इज़ फॉर $3.8 billion चाइनीज इन्वेस्टमेंट जोन विद 20% ऑफ कंबोडियाज कोस्टल एरिया. इट्स प्लान also include इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डीप सी पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल पार्क. चाइनीज़ जो फैसिलिटी बना रहे हैं वो लोग ड्यूअल यूज़ के लिए बना रहे हैं. स्पेशली उस फैसिलिटी का मिलिट्री यूज़ है. ओके, तो मिलिट्री डायमेंशन ऑफ एनी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी डेंजरस. ओके, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, Dara Sakor airstrip will be the Cambodia's largest runway, and if the Chinese use its military, then it will be able to establish air dominance not only in South Asian but a South China Sea. साउथ एशियन सी और साउथ चाइना सी में पूरी तरीके से एयर डोमिनेंस होगा. तो चीन के इस मूव को अगर भारत को काउंटर करना है तो इंडिया मस्ट डेवलप इट्स अंडमान निकोबार आइसलैंड्स इन फुल फ्लेजेड मिलिट्री बेसिस, फॉरवर्ड बेसिस विथ फुल रैम्पेंट enforcement. Okay, that is what exactly the option remain with India. Dara Sakor Fort facility is also being constructed, which can also increase the strength of PLA Navy. Okay, PLA Navy, People's Liberation Army and Navy. Okay, these are the troops which you are finding in this picture. These are the directly heading towards that facility. The design appears to have kept in a view the military use of Dara Sakor. Obviously, it is a mean to dual civil and military use. Okay, civil and military use इस तरीके से दिमाग में रखते हुए इस इन्वेस्टमेंट को किया है. This confirms the earlier information of a US that Chinese objectives its militarized number of Chinese funded port and airport project in Cambodia. Okay, Cambodia over the years has come under the total control of China. Significantly, Cambodia had refused last year the offer of US to refurbish additional buildings in the Riam naval base, where the US funding had earlier paid the several facilities. Now this base is now
Surrender to whom? Cambodia already surrendered this naval base to China. China is building and ramping up facilities for berthing of Chinese nuclear submarines. Okay, which is very, very highly concerned matter. Okay, and as a security point of view, it is very important. If the Chinese going to put up their nuclear submarines and SSBN in this zone, it will be a strategic conflict. Okay, directly heading towards the conflict. Okay, what exactly China is thinking? ये चाइना क्या सोच रहा है इतनी सारी चीज़ें बनाने के लिए और इतना बड़ा मिलिट्री इन्वेस्टमेंट करने का? इज चाइना प्रिपेयरिंग फॉर वॉर? चाइना वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा है एट अ टाइम यूएस को डील करने के लिए और इंडिया को डील करने के लिए? चाइना सोच क्या रहा है वाकई में इतना ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप करना, और उसी समय जिस समय इंडिया के नॉर्थन बॉर्डर पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है और चाइना ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन साउथ चाइना सी, तो दोनों समय में चीन का ऐसा रवैया होना एक काफ़ी क्वेश्चनपूर्ण है. ओके, आपको क्या लगता है कि चीन रियल में वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. ओके, तो इसके लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? व्हाट स्टेप्स सपोज टू टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, और अमेरिका के साथ इंडिया के जो संबंध है किस तरीके से हमने आगे बढ़ाने चाहिए, इसके बारे में कमेंट कीजिए. आपका क्या कहना है? स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ये मैटर किस तरीके से है? Okay, there would be a serious implication of the increase of Chinese military presence in Cambodia. Obviously, चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस अगर कंबोडिया में बढ़ता है और भारी तादाद में बढ़ता है और चाइना वहाँ पर अपना चाइनीज़ एयरफोर्स का और चाइनीज़ नेवी का रीइंफोर्समेंट करता है विथ न्यूक्लियर सबमरीन्स एंड फाइटर जेट्स एंड लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, सो इट विल बी टोटल पावर इम्बैलेंसिंग सिचुएशन इन दैट एरिया. ओके, एंड डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन होने की बहुत बड़ी संभावना है नियर फ्यूचर में. तो आपका क्या कहना है? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. ओके, इसी के साथ ये जो खबर है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है चाइनाज न्यू मिलिट्री बेसिस इन कंबोडिया एट दारा सकोर. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस का पार्ट है ये. ओके, मेंस क्वेश्चंस का और इंटरव्यू का पार्ट भी हो सकता है. ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड योर सजेशंस आर वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर अस. ओके, आपके सजेशन जो है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है. हमसे कुछ गलती हो रही हो, कुछ गड़बड़ हो, अगर आप तक कंटेंट डिलीवरी करने में, तो प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए. आपके सजेशन हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है. इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ. स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल. ओके, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, सदा पढ़ते रहिए. पीडी रामकृष्णा साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.